and this is infix to which type of conversion? Infix to postfix. Yes. We have seen this example yesterday. I will just do one quick review because we are going to learn the program for this. So see here. Initially, opening bracket, push on the stack, operand hai, copy it in the output. Then the operand, then copy it in the output string, then opening curly brace. So pop the stack, whatever operators are there in the stack, copy it in output. Okay. After that, multiplication sign, push on the stack, operand, copy in the output string, plus operator. Now precedence of the plus operator is less than the precedence of operator on the stack. That's why pop the stack, copy the operator in output string, then push plus on the stack. Next is operand, copy it, then operator. Precedence of this operator is greater than precedence of plus. So don't pop stack, push the operator directly on the stack. Then opening bracket, push on the stack, operand, copy, then plus operator, push on the stack, A is the operand, copy it in output string, then multiplication operator, precedence of this operator is greater than the precedence of the operator which is on the stack. So don't pop the stack, keep it as it is and push the new operator on the stack. Then D, copy it in the output string, then opening bracket. So when there is an opening bracket, at that time what you have to do, pop the stack till now this is closing bracket, so pop the stack till there is an opening bracket and copy one by one operator in the output string. So multiplication first copied, then plus. Yes. So इसके बाद यहाँ पर ये नहीं आएगा. Yes. Then again plus operator. Yes. So plus division plus. अब क्या करोगे? इसके बाद C है. C अभी आएगा क्या? No. Whenever you are going to push plus operator, at that time what you have to do? Pop, before pushing this plus operator on the stack, pop the operators from the stack because this plus operator is having lower precedence than this multiplication operator on the stack. Sorry, division operator. That's why pop it. Then this one, इसका precedence और इस plus का precedence same है. So pop it and copy it in the output string. And then after this, ये सारे pop हो जाएंगे and then push plus operator. Now next is C. So C को as it is operand है, as it is copy करो output string में. And then after this C, now input expression is empty. Every character is finished. So empty the stack. Pop the stack till it becomes empty and copy the operators in the output string. This is conversion from infix to postfix. Now we'll see the program for it. Now, when I want to write the program, first of all, as usual, क्या लिखोगे? Include the files, #include IOStream, then using namespace standard. After that, write down the structure for stack. After that structure, take one class. Yes.
class stack. In that, in the public section of that class, write the functions. Which functions? Initialization, initialization of the stack, empty stack, full stack, push operation and pop operation. ये 5 stack operations and some more operations will, some more functions will be there. Yes, तो वो सारे जितने भी functions है वो सारे public section में लिखो class के. After completion of that functions, close the class definition and then we will write int main. So we'll see here int main. Now int main में सबसे पहले क्या करोगे? Create, क्या करोगे? Object of class. Then और क्या करोगे? स्ट्रक्चर के लिए भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. यस और नो? स्टैक का जो स्ट्रक्चर है, सपोज मेरा स्टैक जो है या क्लास का नेम देती हूं मैं st. सो st ऑफ s1 और स्टैक का जो स्ट्रक्चर आप लिखोगे उसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. यस, सो क्रिएट द ऑब्जेक्ट यहां पर करो या फिर क्लास में भी कर सकते हो. स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्लास में ही करो तो वो कैसे आएगा? स्टैक s, so that you can access the top variable as well as data part. s of top, s of data, ये सब आप कर सकते हो. यस, नाउ सबसे पहले क्या करना है आपको? 2 एरे लगने वाले हैं. क्यों लगेंगे ये 2 एरे? 1 array to store infix expression, second array for storing postfix expression. Yes, जो भी expression user enter करेगा, you have to store it in array. So this is infix and this is postfix. Now, to traverse in infix array, I will use variable I or index I. To traverse in postfix array, I will use index j. Yes, तो ये सारा डिक्लेयर करना होगा. Yes, so सबसे पहले char infix of 20, postfix of 20, then int I, j, और क्या आएगा? Yes, I and j. Then call to और cout statement. Cout किस लिए? Ask user to enter infix expression. So here message enter infix expression. C in infix. So जो भी infix expression user देगा, for example a plus b into c, ये इसमें आएगा. Whenever user press enter after giving this expression, means user ने press किया a plus b into, then user ने press किया c. अब expression खत्म हो गया, user is going to press enter. So जैसे ही user enter press करेगा, यहाँ पे null character automatically copy हो जाएगा. The null character indicates that this is the last of the string. Character array है तो ये string consider होगी. So null character indicates end of the string. Okay. Then अब expression आ गया तो क्या करोगे आप? Call the function infix to postfix. Infix to postfix. Suppose name of my function is infix to postfix,
एंड क्या पास करोगे इसे, इनफिक्स एरे एज एन इनपुट एंड वन पोस्ट फिक्स एरे फॉर स्टोरिंग आउटपुट. स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी नॉर्मल ब्रैकेट. ओके, अब आफ्टर कन्वर्टिंग इनफिक्स इनटू पोस्टफिक्स एरे में क्या आएगा, फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आएगा. सो आप उसे डिस्प्ले करोगे, सी आउट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज, और यहाँ पे आएगा पोस्टफिक्स एरे. यस, वो डिक्लेयर करोगे आप, सॉरी डिस्प्ले करोगे. आफ्टर दैट हियर योर प्रोग्राम एंड्स. सो रिटर्न 0, इंट लिखा है ना इसलिए. ओके, ये इंट मेन पार्ट समझ में आ गया. एक्सेप्ट द एक्सप्रेशन, पास द टू एरेज टू द फंक्शन ऑफ कन्वर्जन एंड देन डिस्प्ले कन्वर्टेड एक्सप्रेशन विच इज इन पोस्टफिक्स एरे. दिस इज मेन पार्ट. अब बचा क्या है हमारा, वी हैव टू सी दिस पार्ट, infix to postfix. We are not going to return anything, so we'll take void infix to postfix. दो पैरामीटर पास किए हैं. यस, सो कैरेक्टर array infix and character array postfix. ओके, सबसे पहले क्या करोगे, मैंने यहाँ पर आई और जे को डिक्लेयर किया है, आप यहाँ पे ना डिक्लेयर करके यहाँ पर भी कर सकते हो. सो हियर इंट आई जे, और क्या लगेगा इनके अलावा, दिस इज कैरेक्टर अरे. सो वेन एवर आई विल एक्सेस वन बाय वन कैरेक्टर, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर एरे है, तो ये जब एक्सेस करोगे इस एक्सप्रेशन से, तो वन बाय वन you will access all the elements as a character. To store that character, you will require one character variable. After that, one more variable, for example, token. Now why this? Okay, now see, token is nothing but, suppose ये जो है एक्सप्रेशन, इसमें जो भी कैरेक्टर है, मैं अगर इसे एक्सेस करती हूँ तो वो टोकन में स्टोर करूंगी और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी. नेक्स्ट कैरेक्टर टोकन में स्टोर करूंगी, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी. और ये एक्स जो है, एक्स में किसके लिए रखूंगी, व्हेन यू आर गोइंग टू पॉप समथिंग फ्रॉम द स्टैक टू स्टोर दैट एलिमेंट, आई विल यूज एक्स. So ये दो variable, and why it is character, because we are treating all as characters. Then what is next? अब क्या करोगे, पहला काम क्या करना है आपको, स्टैक को इनिशियलाइज करो. यस, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है स्टैक को, नहीं. सो यहाँ पर पहले इनिशियलाइज करो स्टैक को. सो कॉल द फंक्शन init stack, इनिशियलाइज हो जाएगा. देन put j equals to 0 means j will point at the 0th index of postfix array. Okay, then next, इसके आगे और एक है, फॉर लूप लिख देती हूँ यहाँ पर. We want to do this one by one. Yes, we will start from here, end here. So for I equals to 0 means now my I is here. Okay, then जब तक I /0 पे नहीं आ जाता तब तक I को इंक्रीमेंट करते जाओ. So एंडिंग कंडीशन होगी infix of, मैम, yes,
मैम वो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स वाले फंक्शन से आप वापस एक बार एक्सप्लेन करो कि स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। ओके, ब्लैंक हो गई थी स्क्रीन। हाँ मैम। Postfix. We are providing two parameters. One is input infix array and second array is our output array. Yes, this array is empty. This consists of input expression. Now I will require I and j to point. I will index in infix array. J will index through postfix array. Now two characters will be required, X and token. So token I am going to use for each and every character of infix array. Whenever I will access this element, I will store it in token variable and I will perform operation on that. Next, उस पे operation perform हो गया, then I will store next character in token. So that's why I will require this token variable. And I am going to use this X variable to store the value that I will pop from the stack and I will copy in the output string. So उसके लिए मैं X use करने वाली हूँ. Then first task is your initialization of the stack. We have not done initialization here. Yes, so we have to first of all initialize the stack. After initialization of the stack, j equals to 0. So j will point to the first index of the postfix array. Then I want to access one by one element. So I will start from here and I will continue till here. So इसके लिए loop लगने वाला है. So I am going to use for loop. So for I equals to 0 and infix of I, ये infix array है. So infix of I not equals to null. जब तक I यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक I को increment करते जाओ one by one. Yes, got the conditions of for loop. Now we'll do actual. मैम Yes. मैम वहाँ पर वर्ड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स फंक्शन है ना, वहाँ पर इनिट एड्रेस ऑफ एस पास किया है, लेकिन एस वहाँ पर एक्सेसिबल कैसे होगा? इंडिपेंडेंट फंक्शन है ना इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. हाँ वहाँ पर इनिट एड्रेस ऑफ एस पास किया है इनिट फंक्शन को. Now you can do one thing for that purpose. You can declare or create the object of structure stack. Yes? Structure ये जो है stack. This is nothing but the name of my structure that I have declared and defined for stack. Yes? Type def struct stack int data size int top. Yes? तो उसका ये क्रिएट किया यहाँ पे और ये यहाँ पे आप पास कर सकते हो. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर आपने यहाँ पर अगर डिक्लेयर किया है या डिफाइन किया है स्टैक का ऑब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वो भी पास करना होगा एज अ पैरामीटर. ओके, सो यू कैन डू एनीवे. सो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है, नाउ आई कैन पास इट. ओके, सो नाउ दिस इज फॉर लूप. So now my I is pointing to 0, means index is 0. So my I is here. Yes. So what I will write? I will write token equals to infix of I. Yes. My I is here. So token equal to infix of 0 means A. That A will be stored in variable token. Now what is that A? I know A is an operand. So what I have to do, copy that operand into postfix array. But computer को कैसे पता चलेगा? There is one function provided in C++, is alnum, means whether the given variable is alphanumeric. If it is alphanumeric, then we can copy it into postfix array. So for that purpose, we will write if, sorry, not A, is alnum token. Yes, अगर ये true है, if this function returns true means
टोकन में जो भी है दैट इज अल्फा न्यूमेरिक. सो व्हाट वी हैव टू डू, नॉट पुश, copy it into postfix array. So what we will write, postfix of j equal to token. Yes? Yes or no? Means ये a जो है as it is postfix में मैंने कॉपी कर दिया. ओके, नाउ अगर ये इसके बाद j को इंक्रीमेंट करो, j प्लस प्लस, इज नॉट अल्फा न्यूमेरिक. मीन्स टोकन में जो भी कैरेक्टर है दैट इज नॉट अल्फा न्यूमेरिक. अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो क्या हो सकता है, टू केसेस हो सकती है कि वो ऑपरेटर है, मीन्स ऑपरेंड नहीं है तो ऑपरेटर है. यस, ऑपरेटर है तो वो कौन से टाइप का ऑपरेटर है, आइदर वो ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है तो स्टैक पे पुश करो. इफ इट इज नॉट ओपनिंग ब्रैकेट तो पहले चेक करो क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या. अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है देन यू हैव टू पॉप द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक. कब तक, टिल ओपनिंग ब्रैकेट इज देयर ऑन द स्टैक. यस, और अगर वो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है तो नॉर्मल ऑपरेटर है. सो फॉर नॉर्मल ऑपरेटर वी विल सी व्हाट वी हैव टू डू. सो हियर विल चेक एल्स इफ टोकन इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट. ऐसा है क्या, अगर है तो पुश स्टैक कॉमा टोकन, स्टैक पे पुश करो. यस, सपोज ऐसी कंडीशन है, इसके बाद भी सपोज कुछ आए ऑपरेटर्स ऐसे आए. ओके, नाउ इस इफ का एल्स, if token is opening bracket then push it, else token is not opening bracket नहीं है means what, token क्या है फिर, token is equal to closing bracket है क्या. अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्या करेंगे फिर, पॉप करेंगे स्टैक को, x इक्वल टू पॉप स्टैक. यस, कब तक पॉप करेंगे, जब तक पॉपिंग करते करते आप लोग ओपनिंग ब्रैकेट तक नहीं आ जाते तब तक पॉप करते रहेंगे. गॉट, ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा. यस, अगर टोकन क्लोजिंग ब्रैकेट है देन पॉप द स्टैक. सो स्टैक को पॉप किया, वैल्यू x में आ गई. यस, अब क्या करोगे, वो उस वैल्यू को यहां पे कॉपी करोगे आउटपुट postfix में. That's why postfix of j equal to x. स्टैक से पॉप किया, x में मिला है, सो x को postfix में कॉपी करोगे. सपोज फॉर एग्जाम्पल कि इसके बाद, इस साइन के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो मैं क्या करूंगी, जब तक ओपनिंग नहीं आता तब तक ये दोनों पॉप करूंगी. ये पॉप करने के बाद मुझे x में मिलेंगे, फिर मैं उससे यहां पर लिखूंगी. नेक्स्ट पॉप करूंगी, x को यहां पे लिखूंगी. यस, ना अब आपने इसके बाद j प्लस प्लस और j इक्वल्स टू j प्लस प्लस और j प्लस वन, आइदर j प्लस प्लस लिखो एल्स j इक्वल टू j प्लस वन लिखो, कुछ भी लिखो. नाउ ये कंटिन्यूस व्हाइल लूप चलता रहेगा जब तक उसे ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलता. ओके, ये थी फर्स्ट कंडीशन कि अगर ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट है. अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो ओपनिंग या क्लोजिंग ब्रैकेट होगा.
एल्स ऑपरेटर है नॉर्मल. यस, इसे रब कर दूं मैं, आगे का लिखना है. नाउ नॉर्मल ऑपरेटर है तो क्या करोगे आप, पहले चेक करोगे, क्या चेक करोगे, ऑपरेटर विच इज प्रेजेंट इन टोकन, precedence of that operator which is in token variable, and precedence of the operator which is on the stack. Yes, अगर जो ऑपरेटर आपको पुश करना है उसका प्रेसिडेंस इज लेस देन द प्रेसिडेंस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, तो स्टैक को पॉप करना है, उसे पोस्टफिक्स में कॉपी करना है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में. सो कैसे चेक करोगे आप, पहले तो प्रेसिडेंस ऑफ टोकन अगर लेस देन और इक्वल टू प्रेसिडेंस, नीचे लिखती हूं मैं, if precedence of token is less than or equal to precedence of top of the stack. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं top stack. One more condition, कि stack empty नहीं है. नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये स्टैक एम्प्टी है, आप पहली बार ही कोई ऑपरेटर पुश कर रहे हैं. ओके, तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो ये कंडीशन चेक होनी ही नहीं चाहिए, सीधा सीधा स्टैक पे पुश होना चाहिए. सो फॉर दैट पर्पस एंड नॉट एम्प्टी स्टैक. ओके, अब ये इफ लिखोगे या वाइल लिखोगे, यहाँ पर वाइल लगने वाला है. वाइल क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा. वाइल प्रेसिडेंस ऑफ टोकन इज लेस देन और इक्वल टू प्रेसिडेंस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक ऑपरेटर एंड स्टैक इज नॉट एम्प्टी, देन ओनली व्हाट यू हैव टू डू, पॉप x इक्वल्स टू पॉप स्टैक. एंड पॉप करने के बाद क्या करना है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में मूव करना है. सो पोस्टफिक्स ऑफ j इक्वल टू x एंड j प्लस प्लस, देन रिपीटेडली करते रहना है. ऐसे हो सकता है कि आपके स्टैक में ये दो ऑपरेटर है एंड नाउ यू वांट टू पुश ऑपरेटर, टोकन है, टोकन में सपोज प्लस ऑपरेटर है. So plus is having precedence less than, now my top is this, so plus is having precedence less than top of the stack. So pop करो, pop किया तो ये pop होगा, उसे postfix array में कॉपी करो. नेक्स्ट डिक्रीमेंट हो जाएगा पॉप, अगेन चेक करो चेक करो, इसका प्रेसिडेंस इससे कम है, अगेन पॉप करो, पोस्टफिक्स array में मूव करो. ओके, और अगर ये कंडीशन गलत है, मीन्स व्हाट, आपके सपोज स्टैक पे है प्लस एंड नाउ टोकन कंसिस्ट ऑफ दिस ऑपरेटर. यस, ये ऑपरेटर टोकन में है, सो प्रेसिडेंस ऑफ दिस ऑपरेटर इज ग्रेटर देन टॉप ऑफ द स्टैक. यस, सो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल व्हाइल लूप में जाएगा ही नहीं. और व्हाइल लूप में नहीं जाएगा तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली उसे उस ऑपरेटर को पुश करना है स्टैक पे. सो पुश स्टैक कॉमा टोकन. ओके, गॉट. इतना होता रहेगा, कहां पर होता रहेगा, ये जो कर्ली ब्रेस है ये है फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट. फॉर लूप का ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग और ये फॉर लूप का क्लोजिंग है. यस, मीन्स क्या हो गया, जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी कैरेक्टर थे इनफिक्स एक्सप्रेशन में सारे हमने स्कैन कर लिए, आई आपका नल पे आ गया. ओके,
नाउ आपको चेक क्या करना है, इज देयर एनी ऑपरेटर प्रेजेंट ऑन द स्टैक? इफ ऑपरेटर इज प्रेजेंट ऑन द स्टैक देन यू हैव टू पॉप इट एंड अटैच इट टू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और पोस्टफिक्स एरे. तो हम क्या लिखेंगे, इसके बाद का कोड मैं ऊपर लिखती हूँ. x इक्वल्स टू पॉप स्टैक. कब तक पॉप करोगे? कब तक करोगे? जब तक कि स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता. सो हियर सबसे पहले आएगी व्हाइल कंडीशन. व्हाइल नॉट एम्प्टी स्टैक, तब तक x इक्वल्स टू पॉप स्टैक एंड पोस्टफिक्स ऑफ j इक्वल टू x, j प्लस प्लस. फिनिश. और इसके बाद आपका इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये जो है ये करली ब्रैकेट, दिस वन इज दिस क्लोजिंग करली ब्रैकेट फॉर दिस. गॉट? यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? मैं एक बार फिर से और समझाती हूं. इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, यस, हमने दो पैरामीटर पास किए हैं. इनपुट which is having infix expression and output array for storing postfix expression. ये स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन ऑफ द स्टैक. नाउ फॉर लूप फॉर i equals to 0, so I will point to the first element of the infix array. और कब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा i? जब तक कि आप नल पे नहीं आ जाते. इनफिक्स एरे के नल पोजीशन पे ये आई नहीं आ जाता, तब तक वो इंक्रीमेंट होगा. नाउ फर्स्ट टोकन, इस वेरिएबल में क्या है? 1 by 1 कैरेक्टर फ्रॉम इनफिक्स एक्सप्रेशन. सो इनफिक्स ऑफ आई लिया, वो टोकन में आया. चेक करो वेदर टोकन इज ऑपरेंड. ऑपरेंड है मीन्स क्या है? अल्फा न्यूमेरिक ही होगा ना, a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी इंटू सी. अगर अल्फा न्यूमेरिक ए बी सी नहीं लेते हो तो आप क्या लोगे? फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 6 इंटू 3 ऐसे लोगे. सो इस 5 के लिए हम क्या चेक करते हैं? ईज डिजिट चेक करते हैं. गॉट? सो इंस्टेड ऑफ अल्फा न्यूमेरिक आप क्या लिखोगे? ईज डिजिट फॉर डिजिट्स. ओके, यहाँ पर हम इनपुट ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि मेरा इनपुट होगा a प्लस बी इंटू सी इन दिस फॉर्मेट. दैट्स व्हाई टोकन में जो भी है वो अल्फा न्यूमेरिक अगर है तो डायरेक्टली कॉपी इट इन पोस्टफिक्स एरे, इंक्रीमेंट j. अगर वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है मीन्स ऑपरेंड नहीं है तो ऑपरेटर होगा. सो वेदर टू चांसेस, ओपनिंग ब्रैकेट है क्या? अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसे स्टैक पे पुश करो. ओपनिंग नहीं है, वेदर इट इज क्लोजिंग ब्रैकेट. अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो स्टैक से 1 by 1 ऑपरेटर पॉप करो. देन कब तक पॉप करना है? टिल ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता. 1 by 1 पॉप द स्टैक एंड कॉपी दैट वैल्यू. वो x में आएगी वैल्यू, सो कॉपी दैट x इनटू पोस्टफिक्स एरे. नेक्स्ट, ये दोनों भी नहीं है मीन्स नाउ आई वांट टू पुश नॉर्मल ऑपरेटर. So for that normal operator, check the precedence. Precedence of my operator which is available in token is less than equal to precedence of the operator at top of the stack. अगर है तो and stack empty नहीं है तो stack operator को pop करो, वो x में आएगा and copy it in postfix array. ऐसा नहीं है तो directly push on the stack. Directly stack के ऊपर वो ऑपरेटर पुश करो. यस, देन यहां पर आपका कंप्लीट होता है. सपोज द कंडीशन इज, मुझे इसे पुश करना है और स्टैक पर ये है. देन व्हाट वी विल डू एट दैट टाइम? दिस कंडीशन इज फॉल्स. यस, सो सीधा कंट्रोल विल कम टू दिस इंस्ट्रक्शन, पुश द ऑपरेटर. So operator will be pushed. And if the condition is like that, my stack consists of multiplication operator and my token consists of addition operator. Now precedence of this is less than this. So ये pop होगा. Pop this operator
इट विल बी अवेलेबल इन एक्स एंड उस एक्स को पोस्टफिक्स एरे में कॉपी करो एंड देन दिस इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड पुश यहाँ पर सॉरी प्लस ऑपरेटर पुश होगा ओके ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन जो भी स्टैक पे बचा है उसे पॉप करो और पोस्टफिक्स एरे में कॉपी करो फॉर दैट पर्पस व्हाइल नॉट एम्प्टी स्टैक पॉप द स्टैक एंड कॉपी इट इन पोस्टफिक्स एरे गॉट एवरीबॉडी एनी डाउट हियर in this then we will see the function precedence this is nothing but the function call yes name of the function is precedence this is called to that precedence function because हमें कहीं पर तो चेक करना होगा ना yes मैम वो जो लास्ट वाला व्हाइल लूप है वो इफ के बाहर है क्या? ये वाला नहीं नहीं वो प्रेसिडेंस वाला व्हाइल लूप ये ना हाँ दैट while loop is इस while loop के बाद else में आएगा वो रुको यहाँ पर एक else मेंशन करना रह गया if else इस if का ये else okay if this is then do this else मीन्स ये भी नहीं ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो एल्स में ये आएगा गॉट एवरीबडी एनी डाउट इन दिस गर्ल्स फास्ट नो डाउट मैम एवरीबडी अंडरस्टूड ये लिखा है Ma'am, can you explain else? Where is that else? What? I mean, which else? Which if does it belong to? फर्स्ट इफ Yes. उसका एल्स पार्ट मेरे 3 इफ है सॉरी ये ऊपर का पार्ट रब करूं मैं ये Yes, लिखा है आप लोगों ने Yes. first if condition okay if that condition is not true it is false then you comes to else part yes उस else में एक if है वो भी अगर satisfy नहीं होता तो एक else है yes जब आप else चेक करते हो तो यहाँ पे आप एक और कंडीशन मेंशन कर सकते हो else if अगर ये नहीं है तो else में जाओ तो else में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन इट्स ओके ओके बट ये भी अगर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती तो लास्ट में आपका आता है else 1 by 1 चेक होगा ही ये पहले ये इफ चेक होगा फिर इस एल्स पार्ट में जाओगे इसका इफ चेक होगा इसके एल्स में जाओगे अगर ये भी नहीं है तो फाइनली दिस वन एल्स So, ma'am, the second one is else if, or it's the if in the else. Yeah, ma'am, the lower one. Yes, ma'am, this one. so you can consider it last else part जिसमें कोई इफ नहीं है इफ else if है लेकिन ये जो है else पार्ट है else तो आप इसे सेपरेटली भी कंसिडर कर सकते हो if else if else Ma'am, that is if in the else, na. That is not else if. इसका ये बोल रहे हो क्या if else इसका And if then, else yeah, exactly. yes it is also okay computer will check that also okay see
इस एल्स में आप ब्रैकेट डालने वाले हो ही, यहाँ पे आएगा ही एक ब्रैकेट एल्स पार्ट के लिए, वो समझ में आएगा ही कंप्यूटर को। ओके मैंने वहां पे ब्रैकेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा यहाँ इस साइड में नहीं है ना, मैंने थोड़ा ऊपर भी लिखा है। तो इस एल्स के बाद एक कर्ली ब्रैकेट आएगा, ये वाइल का है, ये वाइल का यहाँ पर खत्म होता है। ओके देन ये फिर इस एल्स का देखो कंप्लीट होता है, और ये जो आगे वाला है ये फॉर लूप का कंसीडर करो फिर, या यहाँ पे लिखती हूँ मैं उसे फॉर लूप का, और ये वाइल का, और ये जो है ये इस वॉइड। ओके ये एल्स जो है इस इफ का कंसीडर करो फिर। ओके इस इफ का ये एल्स पार्ट। गॉट? एनी डाउट हियर? गर्ल्स रिप्लाई फास्ट, अगर डाउट हो तो पूछो मुझे। योर डाउट मस्ट बी क्लियर्ड बिकॉज you have a practical assignment on this. Yes, अब मैं क्या करने वाली हूँ, whenever I will explain you the practical assignment on the stack, then I am not going to write all these steps. I will just tell you that call the function infix to postfix. You must know what is there in infix to postfix. Okay, so for that purpose, write down this in your notebook. Everybody has written it, or you want some time for writing? Everybody has done? Shall I explain this precedence function now? Yes, ma'am. Ma'am, the last else ends at after the precedence while, right? While loop, sorry, else part जो है ये ओपनिंग ब्रैकेट है else part का, जो यहाँ पे फिनिश होता है आफ्टर पुश इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये जो है ये while लूप का है, एंड दिस वन इज फॉर else पार्ट, एंड दिस वन इज फॉर for लूप। Okay. Okay. Now comes to precedence function. Precedence function is going to return you something. That's why return type is int. मैं ये ब्रैकेट थोड़ा छोटा कर देती हूँ यहाँ पर। Okay. Int precedence. What you are going to pass to the precedence function? One character. Yes. This is also a character. This is also a character. So you are here. You can write char. Okay. For example, char x. जो भी आप ये call, this is called to the function. This is actual parameter. Whatever value of this parameter, you will store it in this variable because this is formal parameter. Now, what you have to do? Yesterday I have told you the precedences. So if x is equal to opening bracket अगर है, so return, यहीं पे आगे लिखती हूँ मैं, जगह नहीं है इसलिए, return 0. Yes, if x is equal to plus or x is equal to minus, अगर है तो return 1, means precedence of plus and minus is 1. If x is equal to division, sorry, multiplication, or x is equal to
division or x is equal to mod operator, then return 2 means precedence for these three operators is 2. else अगर इसमें से कुछ नहीं है तो रिटर्न 3. यस, अगर ओपनिंग है तो ये रिटर्न होगा, ये दोनों है प्लस माइनस तो रिटर्न 1 होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड है तो रिटर्न 2 होगा. इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है देन इट विल रिटर्न 3. वो केस क्या है? अगर आपका ऑपरेटर है पावर ऑपरेटर. ओके, और कोई ऑपरेटर है? नहीं, यही ऑपरेटर यूजर एंटर करने वाला है. यस, सो दिस इज द प्रेसिडेंस फंक्शन जो यहाँ पे कॉल हुआ है. Got everybody? Any doubt in this code? मैम प्रेसिडेंस वाला फंक्शन हम स्टैक में भी लिख सकते हैं ना? कैसे? सर क्लास में मैम, क्लास में. यस, सी क्लास में मैंने पब्लिक सेक्शन में कौन से फंक्शंस बताए. यू हैव टू डिफाइन द फंक्शन इनिट, इनिशियलाइजेशन, एम्प्टी, फुल, पुश, पॉप. ये हमने देखे हैं ऑलरेडी फंक्शंस, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखे. सबके पास है ना इसका कोड? यस मैम. यस, यू हैव द कोड. तो वो 5 फंक्शन प्लस इनफिक्स टू पोस्टफिक्स फंक्शन एंड प्रेसिडेंस फंक्शन. So that 5 functions, 6 and 7. Total 7 functions you have to define, you have to write in public section of the class. Okay. After that, complete class definition. Class definition कैसे complete करते हैं? By giving semicolon. Yes. And after that, you have to write down int main function. Int main function में accept input from user. ओके, अब दिख रहा है. सो मेन फंक्शन में देयर इज अ कॉल टू इनफिक्स टू पोस्टफिक्स फंक्शन. आफ्टर कॉल टू दिस फंक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी दैट इज सी आउट स्टेटमेंट, डिस्प्ले पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन किसमें है? इन पोस्टफिक्स array. So display that array. Yes, so then your program ends. Got everybody? Any doubt in this program? Actually, today I thought that after this program I will explain you the next conversion, that is infix to prefix. But okay, this understanding is very important. आप लोगों को ये समझ में आना ही चाहिए. I will not do any hurry. जितने भी एक्स्ट्रा लेक्चर लगेंगे हम लोग उतने कंडक्ट करेंगे, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कोड ऑल्सो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये लॉजिक कैसे लगाया है ये आपको समझ में आना चाहिए. whenever there is an oral, if due to COVID it is not possible for actual physical college learning, then practical exam में हम क्या करेंगे? Either we will ask you to execute the practicals on compiler, online compiler. With addition to that, we will conduct oral. Yes.
In that oral, we will ask you logic for each and every practical assignment. अगर एक असाइनमेंट है जिस आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स की, सपोज कि यही आपको प्रैक्टिकल में भी एग्जीक्यूट करनी है, then I will ask you the logic for that. Everybody should able to explain that logic. Okay? So we will stop here. Piyusha, stop the video.